सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 13 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे कई खबरें हैं महाकुंभ को लेके और एक खबर है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। लिफ्ट टू कंप्यूटर्स, 4 of 10 गवर्नमेंट टेंडर्स कांट कंप्लाई विद मेक इन इंडिया रूल्स। This department says sometimes it makes more common economic sense. Mandate doesn't create supply resource response, says officials. तो मेक इन इंडिया को लेके ये थोड़ी सी बुरी खबर है कि इतना बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी का नहीं हो पा रहा है। Enforcing 2017 Make in India order in government procurement is easier said than done. Rules framed under the public procurement order prohibit tenders that restrict or discriminate against domestic suppliers, either by specifying foreign brands or setting the eligibility conditions and turnover or production capability that may put domestic firms at a disadvantage. However, over the last 3 years, an estimated 40% over 3,500 high-value tenders, which account for 60,000 crores floated by government departments, are flagged as non-compliant with these rules by Department of Promotion and of Industry and Internal Trade, नोडल एजेंसी फॉर मेक इन इंडिया पुश। तो खुद DPIIT ने बताया है कि जो लेवल ऑफ क्वालिटी एक्सपेक्ट की जा रही है कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से गवर्नमेंट टेंडर प्रोक्योर करने के लिए, वो जो चीज़ लिफ्ट्स हैं, CCTVs हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रोवाइड कराएंगे, वो लेवल ऑफ क्वालिटी नहीं मिल रही है जो एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स 2017 मेक इन इंडिया रेगुलेशंस या रूल्स के हिसाब से। अगली खबर है स्पैटिक्स मिशन के अपडेट को लेके। जो प्रयास इसरो लगातार कर रहा है वो धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। A legal luminary who raised voice against corruption in judiciary, इकबाल अहम चागला साहब का निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर है। आप बढ़िएगा। सीनियर एडवोकेट एंड वन ऑफ द leading lawyers, Iqbal Ahmed Chagla, who passed away Sunday in Mumbai at age of 85, was known as much for his legal acumen as for his tenure as the president of Bombay Bar Association. आगे बढ़ते हैं। अब एक नए नियम को लेके हलचल सी मची हुई है हायर एजुकेशन में। वाइस चांसलर की एलिजिबिलिटी को लेके अब कैसे चुने जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स कैसी होंगी। सरकार एंड कैंपस लिबरलाइजिंग VC एलिजिबिलिटी इज गुड स्टेप फॉरवर्ड, लेटिंग राज भवन और CMO chose them in many steps back. More than 3.5 years after the government announced that it would implement a new national education policy, the task of reforming higher education institutions remains work in progress. The challenge is to remove persisting deficits and enable universities to cater the demands of modern knowledge economy. Addressing these imperatives requires a higher education regulator, UGC, to not just set standards but also act as an enabler in minimum qualifications for appointment and promotions of teachers and academic staff in universities and colleges, regulations 2025 Act. यहाँ पे नए नियमों को लेकर ये तय करा जा रहा है कि और बेहतर होंगे इससे हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्रूटमेंट अलाइंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी to break disciplinary silos. Equally significant are the provisions that will allow senior industry experts and public administrators to apply for VC. अब ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने और क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करा है, अचीवमेंट करा है, एक अच्छा प्रोफाइल रहा है, उनको भी यूनिवर्सिटीज़ को लीड करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वो हमारे यंगस्टर्स में जो करंट रिक्वायरमेंट स्किल्स हैं और जो एक करिकुलम वगैरह होना चाहिए रनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी को अच्छी तरीके से चला सकें।
Opening the VC post the professionals outside the academia could increase the pool of experts required to help higher education. हुआ क्या है बेसिकली, पहले जो लिमिटेशन था कि सिर्फ एकेडमिक वाले लोग ही वीसी बन सकते हैं, प्रोफेसर्स पीएचडीज वगैरह वगैरह, अब ऐसा कोई नियम नहीं है। अब अच्छे अच्छे लोगों को भी ऊपर बिठाया जाएगा जो कि सही में लीड कर सकें हायर एजुकेशन को और हमारे युवाओं को बहुत ही बेहतर बना सकें। द salience of this cannot be overstated that the higher education system, barring select institutions, has been impervious to imperatives of an society वगैरह वगैरह। तो बातें करेंगे यहाँ पे। Opposition rule governments are upset at the prospect of what's tantamount to central veto in the appointment of VCs। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिव्यू पावर बढ़ जाएगी कि किसे क्या अपॉइंटमेंट करना है या नहीं करना है। इन द पास्ट VCs वर ट्रीटेड एज पॉलिटिकल अपॉइंटीज। हर कोई जानता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता बहुत ज़्यादा था। इसी को लेकर कुछ ऑपोजिशन स्टेट्स ने भी अपनी एक विरोध दर्ज कराया है कि ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वीसी अपॉइंटमेंट्स में भी अपनी पावर होल्ड रख रही है मजबूती से। मगर फिलहाल यहाँ पे रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे लोगों को भी हम और जोड़ सकते हैं एजुकेशन सेक्टर से जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करा है। ये नहीं कह रहे हैं कि अकेडमिशियंस को नहीं जोड़ना है, मगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सही में लीड कर सकता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको इसके एक चीज़ बता दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में विशेषकर आज जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिया के अलावा बहुत लोग लीड कर रहे हैं। मिलिट्री आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स लीड कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स भी हैं जो हेल्प करते हैं यूनिवर्सिटी को युवाओं को ट्रेनिंग करने में और एक्सपोजर देने में। आगे देखते हैं और आर्टिकल्स की तरफ क्या क्या बातें करी गई हैं। Saudi hosts Western and regional leaders urges lifting of Syria sanctions। सऊदी अरेबिया यहाँ पे बात कर रहा है कि सीरियन गवर्नमेंट पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उन्हें लिफ्ट करा जाए। डिप्लोमेटिक मीट्स तो होती रहती हैं। बाकी यूएस में कैलिफोर्निया में लगी फायर को लेके यहाँ पे दिया हुआ है कि विंड्स लाइकली टू स्ट्रेंथन, फायर फाइटर्स ट्राई टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ एलए फायर टू द ईस्ट। बाकी साउथ कोरिया में इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो राष्ट्रपति जी के खिलाफ लाया गया था, ली क्वान यूंग के खिलाफ, यूनसुक यूल के खिलाफ, सॉरी यूनसुक यूल के खिलाफ, वो बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर हो चुका है, जनता भी इनसे परेशान है, इनको हटाने की बात चल रही है, मार्शल लॉ लगा दिया था, मगर ये जो है ना रिज़ाइन करने को तैयार हैं ना इम्पीचमेंट प्रोसीजर में सपोर्ट करने को तैयार हैं। हालांकि जो खबर आई है कि वो पहली इम्पीचमेंट हियरिंग को अटेंड नहीं करेंगे, उनका लॉयर अटेंड करेगा। ये तो पर्सनल प्रोटोकॉल में होता ही है कि राष्ट्रपति भले ही महाभियोग आप चला रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी हियरिंग्स में आएंगे, वो उनके अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। मगर यहाँ पे थोड़ा सा उसका मिसयूज़ ये हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने देश में मार्शल लॉ लगा दिया बिना किसी लॉजिक के, कोई समस्या नहीं थी, अपने मन से लगा दी, जो मन में आया कर दिया, ऐसे व्यक्ति को भी अब नियम तो नियम होता है, मगर फ़िलहाल वहाँ पे जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर के खिलाफ लाया गया था उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और जनता भले परेशान है, मगर ये अपना मौज में चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वही वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट्स को लेके यहाँ पे और बात करी गई, आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज पिंक फायर रिटार्डेंट बीइंग यूज्ड अगेंस्ट कैलिफोर्निया फाइल फायर्स। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे ना कई इमेजेस में जहाज़ों से, ये रेड और पिंक कलर का क्या है ये, है ना। पानी तो हम जानते हैं कि पानी से आग बुझाई जाती है, मगर ये चीज़ क्या है। As multiple fires blaze in Southern California, authorities are using planes to drop large amount of bright pink fire retardants. While its use is not new in the US, growing research has raised question about its effectiveness and potential environmental impact। ये है क्या, कैसे काम करता है और क्या ये सही में इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर, नुकसान कर रहा है, फ़ायदा कर रहा है वगैरह वगैरह। Fire retardants is a mix of chemical used to extinguish a slow or the spread of fires. To tackle the wildfires in the US, authorities commonly use a brand known as Phosgene, which mostly contains an ammonium phosphate based slurry।
इसमें अमोनियम फॉस्फेट होता है। सॉल्ट्स लाइक अमोनियम पॉलीफॉस्फेट डू नॉट इवेपोरेट ईजिली लाइक वाटर एंड स्टे फॉर लॉन्गर, और क्योंकि जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। सेंटोन फ्लोरिया, स्पोक्सपर्सन फॉर द नेशनल इंटेलिजेंसी फायर सेंटर इन बॉयज डाहो, टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही एक ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन और आग को लगाने में असर कम कर पाती है। कलर इज यूजली एडेड टू फायर रिटार्डेंट्स टू इंश्योर दैट फायर फाइटर्स कैन सी इट अगेंस्ट द लैंडस्केप, और कलर इसमें इसलिए डाला जाता है कि ताकि वो अलग से दिख सके कि ये कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। दिस हेल्प्स द क्रिएट फायर लाइन्स पोटेंशियली सेविंग लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। फॉस्चेक इज अ पिंक कॉज कलर इज बाय फार मोस्ट विजिबल, क्योंकि कलर भी आपका देखें तो स्पेक्ट्रम में मोस्ट विजिबल में आता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कंसर्न्स? एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैव आर्ग्यूड दैट स्प्रेइंग फायर रिटार्डेंट्स यूजिंग प्लेन्स इज इनफेक्टिव, एक्सपेंसिव एंड ग्रोइंग सोर्स ऑफ पॉल्यूशन फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब देखिए, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स तो हर चीज़ में कोई कोई टिप्पणी करते ही करते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये आ रही है कि जो कई प्रयास करे गए हैं, यही एक तरीका बचता है ऊपर से डालने का, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी साउथर्न कैलिफोर्निया फाउंड दैट फॉस्चेक इज लैडन विद टॉक्सिक मेटल्स, जो कि होता ही है उसमें, और वो नुकसान देता ही थी कि ये तो होना ही है, हर चीज़ का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। मगर बात यहाँ पे है कि चलिए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर हम मान लें हेवी मेटल्स वगैरह के, वो धीरे धीरे आएंगे, मगर आग से जो नुकसान, जान माल खतरा हो रहा है, वो तो क्विक है, कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। द इफेक्टिवनेस ऑफ फॉस्चेक ऑल्सो रिमेन्स अनक्लियर बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द न्यूमरस फायर फाइटिंग टैक्टिक्स डिप्लॉयड इन द मेजर फायर। हालांकि फॉस्चेक कोई 100% इफेक्टिव नहीं माना जाता है, मगर फिर भी कुछ हद तक ये कुछ हद तक मदद तो करता ही है फायर फाइटर्स की आपकी। अगला आर्टिकल देखते हैं महाकुंभ को लेके, अभी पढ़ लीजिएगा, कुंभ ओरिजिन, बहुत अच्छा आर्टिकल लगा मुझे। बताने का प्रयास करा इन लोगों ने कैसे महाकुंभ होता है, क्यों होता है, और क्या मैथोलॉजी है इसके पीछे। हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा मुझे, मगर हाँ नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये 12 साल which takes according to Kumbh Mela website, when Jupiter, which takes 12 years to complete a revolution around the sun, is in Aquarius or Kumbh Rashi, and the sun and the moon are in Aries and Sagittarius respectively, Kumbh is held at Haridwar. बाकी कब कहाँ पे होगा, हरिद्वार में कब होगा, प्रयागराज में कब होगा, और एट्सेट्रा मोर डिटेल्स इसमें बताई गई हैं, आप जरूर पढ़िएगा। फिलहाल आज के क्विक एनालिसिस में इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और इस बीच आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करके और करंट अफेयर्स को भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेंगी। डिटेल में हमने बहुत सारी करंट अफेयर्स आपके लिए एक्सप्लेन करी हुई है, जो कि वो शॉर्ट बहुत ही हमने प्रिसाइजली पिक करी है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम, हैव अ वेरी नाइस डे।